नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaria Gojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And as far as we are concerned, well, you know, we've got a great show tonight. First of all, the Americans have threatened us again. They've said that anybody who buys more Russian oil will face further sanctions. So what has India done? India has decided to buy more Russian oil. So we've said thank you very much. And what is more, we are going to be selling more diesel to Ukraine. That is the best part. We have got, surprisingly, China has openly lashed out at Trump. They said, you can't do that to India. What you have done to India and Prime Minister Modi is wrong. And a Chinese strong defense of Indian policies. And Israel, the former defense attaché, tells that look how Modi has taken over Trump. Yes. He never compromised on self-respect, never went to apologize. He said something that Netanyahu should learn from Prime Minister Modi. Modi has become a living example to the whole world, the way it seems one after the... Now the most surprising thing is China taking on Trump, saying that what you've done to India is wrong. The Trump tariff to India is wrong. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है प्रदीप जी कि सिर्फ 3 देश हैं who have stood up to Trump. One is India, second is China, third is Russia. That's it. Of course, as far as Vladimir Putin is concerned, Vladimir Putin made a clown out of Trump. He met him in Anchorage, Alaska, promised him nothing, shook hands with him, went back, attacked Ukraine even more intensely. The unusual smile, we were always discussing unusual smile. Well, Putin is smiling more than usual. Yes. This Trump meeting of his. And we were discussing, sir, we were saying, what is this? Is it a dummy? Is it the third person? I think Putin was laughing at Trump. That's what happened. That's exactly what happened. और अभी क्या हुआ है कि हिंदुस्तान के जो लॉबिस्ट हैं, जेसन मिलर साहब, उन्होंने जाकर के ट्रम्प साहब से बात करी है और उनको कहा कि भैया क्या कर रहे हो तुम? जरा अकल से काम करो। जो तुम्हारे 2 अकल के दुश्मन हैं, तुम्हारे आसपास एक बेसेंट साहब हैं, एक कोई और हैं, पता नहीं अजीबो गरीब नाम है उनका, हेस्केट या ऐसा कुछ करके नाम है उनका, और एक तो है नवारो साहब, जिनको बाय द वे एलन मस्क रिटार्डो बुलाता है। एलन मस्क कॉल्स हिम रिटार्डो, ही कॉल्स हिम पीटर रिटार्डो, नॉट पीटर नवारो। कहता भाई ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो, उनकी एडवाइस लो जो हिंदुस्तान को जानते हो, पहचानते हो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री जिनको मालूम है और आज हिंदुस्तान की ताकत कितनी है जिनको मालूम हो, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो। बट एनीवे, No, unusual committee. No, if you leave the party, आपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी ज्वाइन किया, बट आप उसी पार्टी के पुराने पार्टी के लीडर को आप बैड माउथ करते हैं. Like विश्वजीत राणे, probably he was a staunch congressman. Yes, he was. Yes, from Goa. Pratap Singh Rane's son. Now today he says Rahul Gandhi in private talks bad to his mother. He abuses his mother, shouts at his mother. I mean, is it good? Is this हम क्या सिखा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को? जिस पार्टी में आप लॉयल लीडर थे, आप छोड़ के आ रहे हो, अब सोनिया जी को गाली दे दो, राहुल गांधी जी को बोल रहे कि राहुल गांधी जी अपने माँ को गालियां देते थे इन प्राइवेट. That is wrong. I think that is wrong. He should not be talking like this. He should not be talking like that. There is no doubt about it, which is absolutely terrible. Absolutely terrible and not acceptable. And I think that is something which should not even be considered. And what is that footage we are showing? Who's that guy who's gesticulating पीछे? राहुल गांधी को लेकर के ये जो चश्मे वाले भाई साहब हैं कौन हैं? I think he's asking them to go inside to vote. From one particular way, go inside from one way and come out the other way. All right, now let's go straight across to our guest. We've got Ali Darwala Sahab, our dear old friend. Darwala Sahab, how are you, sir? He's just. Good evening. Good evening, sir. Just out of a box. And Dr. Surena Malhotra, namaskar, ma'am. How are you? After a long time, Surena ji. और हमारे एवरग्रीन पुराने दोस्त हमारे निजामुद्दीन रहीम साहब, क्या बात है सर. आदाब सर. आदाब सर, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाकी सब भी जय हिंद. तो मेरा ये कहना है निजाम साहब, आज वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग हुई है, अभी काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, तो मतलब एनडीए के नंबर्स आवे थे, एनडीए के साथ नंबर्स तो आई, तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे.
लेकिन मुझे दो चीजें हैं सर जिसमें मुझे जरा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक तो वो जो मराठा आरक्षण है, जिस प्रकार सरकार ने जीआर निकाला है, उस जीआर को लेकर के काफी अफरा तफरी मची हुई हर जगह पे, यहां तक कि जरंगे पाटिल साहब भी काफी मतलब जिसको कहते हैं अब खुश नहीं नजर आ रहे, वेरी फ्रेंकली, नंबर एक। और नंबर दो, चाइना जिस तरीके से हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, अरे भाई कमाल हो गया ये तो। ये क्या, ये कैसे हो गया? अब आप बोले सर, निजाम साहब प्लीज। सर आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते जब जिस दिन जरंगे को जाना था, जिस दिन उनका जीआर आया, आपके चैनल पे ही मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से कहा था कि तुम गद्दारी कर रहे हो, उनके साथ धोखा कर रहे हो। वो अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने वो जीआर निकाला, वो एक दिन भी कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। हमने आपको उसी दिन कहा था तो वो हंस रहे थे, और लेकिन वो बात बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि बीजेपी सरकार मराठा आरक्षण को लेकर सिर्फ धोखा दे रही है। और ये फिर 15 दिन में, महीने भर में जरंगे को फिर आना है आंदोलन करने, क्योंकि जिस तरह की चीजें उसके अंदर मेंशन हैं वो एक भी होनी नहीं है, और वो सब संविधान के दायरे में बैठती भी नहीं है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वही है तो हमने आपको पिछले हफ्ते उस पर, बल्कि वो हंस रहे थे, आपको याद है ना जी। मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग आज भी धोखा दे रहे हो जरंगे पाटिल को, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो संसद से निकल कर आएगा। संसद में जब तक आप कोई कानून नहीं बनाएंगे रिजर्वेशन के चीजों को बढ़ाने के लिए, जो 50% की डेडलाइन है उसको बढ़ा के 60-70 जब जितना करना है, जब तक संसद डिसाइड नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट एक दिन भी इसको मानने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो ऐसा कर दिया है कि हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो वो नहीं टिकेगा और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैं ओबीसी मूवमेंट के साथ 20 साल काम किया हूँ, आपको सर अच्छे से याद होगा। जब मैं ओबीसी के तमाम लीडरों के साथ काम किया, 10 साल मैं ओबीसी का मुंबई का प्रेसिडेंट रहा उस टीम में, तो मुझे ये इस तरह की चीजें पता है। अगर शरद पवार साहब कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब कि कोई बचपना नहीं कर रहे हैं, इनकी तरह से चिल्ली की तरह बात नहीं करते। इनके प्रधानमंत्री भी वही हरकत करते हैं, वही हरकत इनके मुख्यमंत्री करते हैं, इनके जो लोग हैं। हमारे यहाँ तो सभी लोगों ने इस चीज को झेला है, और जिस तरह की बातें उस दिन आनन फानन में खाली कराने के लिए मैदान और उनको दे दिया, ला के 1 घंटे के अंदर जीआर की कॉपी भी बन गई और सारा चीज दे दिया, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो जजेस के डर के मारे इन्होंने दिया। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो जजेस के कार्यालय हैं वो सब आजाद मैदान से निकल के कुलाबा की तरफ आने के वक्त कोर्ट के बीच में पड़ते हैं सर, और सारे जजेस की जगहों पर वो लोग पहुंच गए, तो उनकी घबराहट और उनकी देखने की वजह से एक निर्णय उनको लेना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारी बदनामी हो जाए और इस तरह के हालात बिगड़ जाए लॉ एंड ऑर्डर का। तो उन्होंने ये जीआर बना दिया, करके दे दिया आपको, और वो बेचारे सब खुश होके सब चले गए। लेकिन जब भी वो जा रहे थे उसी टाइम मीडिया में इस तरह की बहस शुरू हो गई थी कि ये गलत कुछ हो गया है। बाद में जब अब वो बहस आ रही है तो जो 6 मांगे थी उसमें से 4 जो दिखा रहे थे, 2 तो उन्होंने मानी ही नहीं थी, और उसके बाद वो जो हैदराबाद गजट है, फिर उसके अलावा सतारा गजट है, दूसरा चीज है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की हड्डी बनने वाली है। आज अभी भले वो हंस लें, बात कर लें, लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन निजाम साहब और मराठों को लेकर होगा। आज हमने देखा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सब जाके वोट किए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तरह तरह के बात है, एक यात्रा 4 ट्रिप राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी मलेशिया में है, इलेक्शन के वक्त वो है ही नहीं, तो ये सब झूठ निकला। राहुल गांधी जी आके आज वोट किए। किरण रिजिजू का जो आरोप था, एक यात्रा 4 फॉरेन ट्रिप, वो गलत निकला। निजामुद्दीन जी सर ऐसा है कि इनके यहाँ एक बहुत ही कमीना आदमी है जिसका नाम है अमित मालविया। मैं उसके लिए ये शब्द यूज कर रहा हूं, कमीना सर, क्योंकि राजनीति में कोई मर्यादा होती है सर। राहुल गांधी कोई ऐसे छोटे से नेता है नहीं कि गली में से निकले और मलेशिया पहुंच गए या लंका पहुंच गए या दुनिया में कहां पहुंच गए। वो इतने बड़े आदमी हैं कि उनको जाने से पहले राज्य की एजेंसियों को बताना पड़ता है, उसके बाद उनका वीजा सैंक्शन होता है, वो भारत सरकार के अंडर में होता है, सारी इंटेलिजेंस व्यवस्था होती है। ये सब पैदा करके अगर वो गए भी थे, इन केस मैं कहता हूं कि अगर वो गए भी थे तो भारत सरकार की बगैर जानकारी को तो राहुल गांधी नहीं जा सकते ना। और जाने के बाद जिस तरह की आप बेहुदा हरकत कर रही है इनकी ट्रोल मीडिया, उससे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है ना सर। उनकी सिक्योरिटी के साथ धोखा कर रहे हैं ना भाई। वो बार बार जब भी निजाम साहब, जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं
वो किसी लड़की की तस्वीर लगा देते हैं, किसी महिला की तस्वीर लगा देते हैं राहुल सर, गांधी के मैंने साथ, इसीलिए- और वो इसीलिए बोलते हैं कि तो इसकी सर, मैंने- गर्लफ्रेंड है। ये क्या है यार? बट दिस इज टेरिबल। सर मैंने जो Very आपको wrong. कहा कि वो This- कमीना आदमी है जो इनके यहाँ अमित मालविया है, उसके लिए मैंने कमीना शब्द यूज किया। And he has been held और कोर्ट्स ने भी उसको काफी डांट लगाई है कितनी बार, मतलब नहीं क्या सर, है वो यार? सुनता ही नहीं। वो इतना बड़ा कमीना आदमी है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो आपने देखा होगा कि उसने एक तस्वीर लगाई थी जब भी वो भारत में वहां के प्रेसिडेंट आए थे, वो चल रहे किसी और के साथ, वहां जी। से फोटो हटा के और एक दूसरे सब को जोड़ दिया इंडिया से। तो ये इतनी घटिया सोच इस देश में कभी डेवलप नहीं थी। और एलओपी कोई छोटा मोटा लीडर नहीं था, राहुल गांधी है। आप उसको क्या समझते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन भारत सरकार के अंदर जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, जो अधिकारी है जिनको जानकारी है, फॉरेन मिनिस्ट्री की जिनको जानकारी है, उनकी सारी जो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करती है, एजेंसियों को जानकारी है, और इस तरह की बेहुदा हरकत करके वो क्या साबित करना चाहते हैं सर? ऐसे आदमी को शूट कर देना चाहिए। इनफैक्ट निजामुद्दीन रईन साहब इनफैक्ट आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए अमित मालविया को। ही हैज मेड राहुल गांधी मोर पॉपुलर अमंग द यंगर पीपल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। वो एक अलग चीज है, लेकिन नैतिकता भी सर राजनीति में कोई चीज होती है अरे ना। सर छोड़िए, वो सब गया। लेट मी गो टू अली दारूवाला साहब। दारूवाला साहब, ये क्या है? ईच टाइम राहुल गांधी गोज अब्रॉड, इफ ही गोज टू मलेशिया, इफ ही गोज समवेयर एल्स, आप लोग किसी एक्ट्रेस की तस्वीर लगा देते हैं उसके साथ। आजकल तो सर एआई ऐसा बन गया है। अ फ्रेंड ऑफ माइंड यस्टरडे सेंट अ पिक्चर ऑफ मी विद नरेंद्र मोदी जी, एंड नरेंद्र मोदी जी इज होल्डिंग माय हैंड लाइक दिस। आई कैन सेंड इट टू यू इफ यू लाइक। मैं आपको बोल रहा हूं दारूवाला साहब, यू विल थिंक इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट उस पिक्चर में कुछ गड़बड़ नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो एडवांस। दारूवाला साहब, व्हाई आर वी डूइंग दिस सर? Sir, you are a responsible party. You are the party of Atal Bihari Vajpayee. You are the party of Shyama Prasad Mukherjee. You are the party of Lal Krishna Advani ji, of Dr. Bhai Mahavir. Sir, क्या है सर ये? Please, दारूवाला साहब आप बताएं please. Yeah, good evening, Nizamuddin ji. Assalamu alaikum. Good evening to ma'am, Pradeep ji, Rajiv sir. It's a pleasure being on this channel with you. Over here, I would like to open this debate by requesting Nizamuddin ji. He really goes off board. He starts abusing people. वो चोर चक्का ये जो words use करते सर. Why are we not hearing दारूवाला साहब? दारूवाला साहब की आवाज नहीं आ रही, उसकी जगह पर एक परकशन इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसमें। जी अभी आ रही है सर, बोलिए सर, बोलिए। Yeah. No, what I'm trying to tell you over here is, मैं निजामुद्दीन सर दूसरा हेडफोन लाओ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या मीन्स चोर चक्का इनको गोली मार देना चाहिए, ये ऐसे हमने शब्द ये अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो यंग एजुकेटेड लॉट है। वो लोग ये अपने डिबेट्स को बहुत ज्यादा मीन्स तो ठीक है, अगर वो मुझे कुछ कहते हैं, वो हमारे बड़े भाई है, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ। मगर अमित मालविया सच है झूठ है नहीं मालूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से वो चीज हकीकत भी है कि नहीं हमें नहीं मालूम है। वी शुड टेक सम टाइम टिल द फैक्ट्स कम आउट। आपने सवाल पूछा क्या राहुल जी का जो मलेशिया का विजिट है उसके साथ में किसी का फोटो बताना ये करना, मैं ये बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी की जो पर्सनल लाइफ होती है, जैसे आपके पहले मैं प्रदीप जी की बात सुन रहा था, प्रदीप जी कह रहे थे क्या राहुल जी की निजी जिंदगी के बारे में some tall leader from Goa was talking very loosely. Sir, I am totally against this, totally against. As a BJP spokesperson, I can assure you my party doesn't entertain this kind of behavior. I personally do not entertain such kind of behavior. और जो विचारधारा से ये पार्टी या सत्ता में आई है, हमें ये चीजों से महरूम रहना चाहिए और पर्सनल वेंडेटा ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात देख रहा हूँ यहाँ पर इतना ज्यादा इंटॉलरेंस, हर चीज के अंदर सेंसिटिव होना, हर चीज को रिलीजन के साथ में जोड़ना, ये चीज को हमें रोकना चाहिए। सोशल मीडिया आने से हम लोग यहाँ पे एक एजुकेशन लेवल किससे ऊपर जाने के बदले हम लोग यहाँ रिवर्स जा रहे, उसे नेगेटिविटी में यूज कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे रिलीजन के बारे में, किसी के धर्म के बारे में, किसको पर्सनल ट्रोलिंग जो हो रहा है उसके बारे में, ये काफी आम हो रहा है। उसे उसका निषेध करने के एवज में हम लोग उसको ज्यादा देख रहे, ज्यादा लाइक कर रहे। जिम्मेदारी ये हमारी बनती है
जिम्मेदारी ये चैनल की बनती है, ताकि हम इसको डिस्कस भी नहीं करें अपने इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसे उधर ही फुल स्टॉप डाल के ये बात को खत्म करें। प्रदीप जी, राहुल जी। दारूवाला साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बर्थडे है 17 सितंबर को। महाराष्ट्र में जितने कलेक्टर्स हैं उन सबको इनफॉर्मली आदेश गया कि कुणबी सर्टिफिकेट टू बी इशूड टू मराठास। ये मोदी जी के बर्थडे 79 को लेके गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक आपको देना पड़ेगा, उससे पहले आपको देना नहीं है। आप इसको एक बड़ा इवेंट बना रहे हो। आप इसको एक इवेंट इसलिए बना रहे हो, आपको दिखाना है कि ये बीजेपी का सफलता है कि मनोज जरांगे पाटिल मुंबई से वापस गए और कुणबी सर्टिफिकेट बीजेपी के तरफ से जा रहा है, और मोदी जी के बर्थडे से आप शुरू करने वाले हो कुणबी सर्टिफिकेट इशू करना। यू आर मेकिंग इट एन इवेंट। दारूवाला साहब बीजेपी इसको एक मैसिव मेजर नेशनल इवेंट बना रहा है। देखो, ये सर्टिफिकेट इशू करना, ये जो जीआर बना है, जैसे हमारे निजामुद्दीन जी ने कहा कि आनंद फानन के अंदर ये काम किया जा रहा है। बेशक आनंद फानन के अंदर मराठा लोगों को जो मान सम्मान और जो उनने चाहा, और जो मनोज जरंगे पाटिल जी ने यहाँ पर जो आंदोलन जिस मुद्दे से किया था, उनका ये यश है। और उनका यश जो 33 इयर्स हमारे पहले जो लोग सरकार में थे, इतने सारे मुख्यमंत्री होकर जी। गए, जैसे इन्होंने ऑनरेबल शरद पवार जी का नाम लिया था। ऑनरेबल शरद पवार जी ने तो क्या कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, क्या बोले, ये रिजर्वेशन देना ये संविधान के खिलाफ है, ये नहीं देना चाहिए, इससे हमने महरूम रहना चाहिए। और मराठा को रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने कोई भी, या इसके लिए अंदर दूसरे भी जो आने वाले सीएम उनके बाद में, जो विलासराव देशमुख जी, जिसका मैं काफी बड़ा फैन था, ये लोग ने कुछ भी इसके तरफ हलचल नहीं करी। तो ये चलते हुए जब 35 इयर्स के बाद में जब उनको कुणबी को एक ब्लैंकेट रिजर्वेशन, ऑल महाराष्ट्र एज पर देयर वर्क कल्चर दे हैव बीन गिवन अ रिजर्वेशन, आई थिंक इट इज अ बिग अचीवमेंट। इसे जल्लोश के साथ, इसे खुशी के साथ यहाँ पे अंदर मनाना से चाहिए। दारूवाला साहब बहुत दुखी हैं। कोई भी इसके अंदर किसी को भी दुख या रिजर्वेशन अंदर से दारूवाला साहब व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुखी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं, कि so व्यक्तिगत तौर पे दारूवाला साहब कहते हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति के ऊपर होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को आरक्षण दीजिए और किसी को मत दीजिए, सीधी सादी बात है। लेकिन दारूवाला साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बिफोर आई गो टू डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा। सर, आपको लगता नहीं है दिस इज बिकमिंग टू मच? सर, कास्ट में लड़ाई, सब कास्ट में लड़ाई, अब कास्ट बेस्ड क्या है, सेंसस होगा। अब क्या है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई तो चलती रहती है, वो तो आप उड़ाते रहो। अब क्रिश्चियंस के साथ भी लड़ाई, अब क्या है, तमिल और हिंदी की लड़ाई, मराठी और हिंदी की लड़ाई है। क्या हो रहा है सर देश में? क्या व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? बोलिए सर। Maybe you missed my statement. I said just now, इतना ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ते जा रहा है जी। यहाँ पर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। मीन्स आई डू नॉट नो, ये जो आफ्टर 77 years of independence, rather than emerging and becoming a global country, rather than becoming this a larger than life country, हम लोग रिजर्वेशन को लेके लड़ रहे, बैकवर्ड जा रहे हम लोग ये देश को पीछे खींच रहे हैं। मैंने तो खुला कहा, यहाँ पे निजामुद्दीन जी भी है यहाँ पर, आज यहाँ पे भारत देश में 142 करोड़ जनता के अंदर आज मुसलमान का जो यहाँ पे हमारा प्रेजेंस है 20 से 25 करोड़, अभी फाइनल फिगर मालूम आएगा। तो हम लोग तो कहते हैं कि अभी हमको माइनॉरिटी मत कहो, हमको मेजॉरिटी लो, हमको मेन स्ट्रीम में लो, हमको ओपन कैटेगरी में डाल दो। जो हमारा रिजर्वेशन है वो भी हमारे भाइयों को, जिसको कम पड़ता है 2%, 5%, जो भी हमें एजुकेशन में इसमें उसमें जो हमको रिजर्वेशन दिया गया है, आप उठा के वो भाइयों को दे दो जिसको हमसे ज्यादा आवश्यकता है। मगर ये झगड़ा बंद कर दो, इसको कहा तो खत्म कर दो, या तो पूरा 100% रिजर्वेशन कर दो, बात ही खत्म। ओपन कैटेगरी रहना यानी रिजर्वेशन या माइनॉरिटी में रहने के बराबर होते जा रहा है। एनीवे, मेरे कहने से कुछ होता नहीं है, निजामुद्दीन जी भी जानते हैं। यहाँ पर एक जमाना था क्या जब देश में लोगों को, बिछड़े लोगों को रिजर्वेशन की आवश्यकता थी। आज हम 70-80 साल निकल के बाहर आए हैं, आज हम ओपन होना चाहिए। हाँ, बेशक ये चलते हुए मुझे ऐसा लगता है जो गरीब है, जो इकोनॉमिकली जिसके पास ताकत नहीं है, जिसकी फीस भरने की हैसियत नहीं है,
अगर उसको सहयोग सहायता अगर हम दे सकते, भले वो बट कोई भी जाति का, दारोला साहब, अगर प्रॉब्लम ये है कोई भी मोदी जी के जाति बर्थडे का- से आप शुरू करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुंभी सर्टिफिकेट 2 हफ्ता, मोदी जी के बर्थडे से 2 हफ्ता में पूरे महाराष्ट्र में आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कलेक्टरों को आपने एडवाइस दिया है कि उससे पहले मत करो, कुंभी सर्टिफिकेट मोदी जी के बर्थडे से शुरू करना है। यू आर ट्राइंग टू हाईजैक द एंटायर इवेंट, आप पूरे इवेंट को हाईजैक करो कि फडणवीस साहब और बीजेपी ने किया है। दारूवाला साहब, ये आप कह रहे हो प्रदीप सर, हमने कभी भी नहीं कहा कि बीजेपी ने किया। ये आप घोषणा हमारी किए। जो सरकार है महाराष्ट्र में, एक दिन सुनिए ना, देखो मुख्यमंत्री जो होता है अगर अच्छा होता है तो वो उनके ऊपर वो नारियल फूटता है, अगर बुरा भी होता है तो उनके सर पे वो नारियल फूटता है। मगर हमारे साथ में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को एकनाथ शिंदे जी है, अजीत पवार जी है, और ये तीनों ने मिलके इसमें से जो मार्ग निकाला है, ये श्रेय अकेला देवेंद्र जी को नहीं, ये सरकार को, हमारे दोनों डेप्यूटी सीएम को और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को जाता है। ये किसी एक को नहीं जाता, ये किसी एक की मेहनत नहीं है, ये सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी सरकार है उसका ये पहल है। और ये पूरी जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार सेंटर और स्टेट में जो काम कर रही है, जी वो लोग ये चीज में से रास्ता निकाल रहे और ये एक समन्वय के साथ में हम काम कर रहे हैं। Right, let me go to Dr. Surya Malhotra. Dr. Surya Malhotra, I know you want to comment, but I would like you to also look at something else. सर वन मिनट, एक सेकंड, निजाम साहब, अभी अली भाई ने एक बात कही कि मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। मैं अली भाई से जानना चाहता हूं कि ये बीजेपी का स्टैंड है या अली उनका भाई उनका व्यक्तिगत स्टैंड है, बोला उन्होंने Yes. कि बीजेपी का स्टैंड नहीं है। जो बोला अली भाई उन्होंने। बोले कि श्रेय की He जब said बात very होती clear. है तो आप मुझे बताइए कि देवा भाऊ करके पोस्टर्स से पूरे सब पोस्टर्स जो लग रहे हैं, दे तो सिर्फ देवा भाऊ का नाम क्यों है उसमें? आप बोल रहे कि श्रेय सब तीनों जन को जाने वाला है। तो ये जो है और जैसा इनके मोदी जी के बर्थडे के टाइम पे सब वाटअप होने वाला है, तो ये शोमैनशिप में तो क्या है और क्या है? आई मीन सॉरी टू से, बट बीजेपी इस चीज में तो बहुत ही माहिर है कि किसी भी इवेंट को मतलब इवेंट के तौर पे उसको बनाए रखा। अभी ये लास्ट मिनट डिसीजन हुआ, उनके ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने कुछ भी ऐसा जीआर निकाल दिया और उसी में भी इतना बड़ा क्रेडिट लेने की बात हो रही है। तो मैम ये तो कुछ भी नहीं है। Why you disturbed डॉक्टर मल्होत्रा? अयोध्या में तो पोस्टर लग गए थे, जो राम को लाए हैं हमें उनको लाना है। जी वो तो रामलला की तस्वीर थी, मोदी जी उनको उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बस दिस इज हार्डली एनीथिंग मैम। मैं आपसे आप इस पे आरक्षण पे तो बात कीजिए, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। अभी जो लेटेस्ट फिगर जो आए परसों, दारूवाला साहब सुनने वाली बात है, और निजामुद्दीन रहीम साहब आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी जो रिपोर्ट आई है मैम, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अबाउट 20 rupees per day, or is it 40 rupees? I'm not sure. One second, let me see. 40 rupees per day. 40 rupees per day on destitute cows. जो गाय दुधारू नहीं रहती ना, जिसको स्टेट देखभाल करता है, 40 रुपए पर दिन। और गेस व्हाट, जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर 12 रुपए खर्च रही है। गाय के ऊपर 40 रुपए, और जो गरीब से गरीब बच्चा है, ये गवर्नमेंट के फिगर से, मेरे फिगर नहीं है, 12 रुपए, 12 rupees per day on children, मैम, destitute children। जी बोलिए। This is all absolutely distorted priorities. That is what is happening. That priorities over here in this government, the priorities are absolutely unjustified. I mean, what to say? I mean, as I was just talking about this Deva Bhau thing also, I heard some 50 crores was spent on that. I mean, don't you think such money would have gone to the farmer? In one day, एक दिन में। To gone to the farmers, to gone to for the reforming the schools which are not good. So why is it that the money is not being used for the correct things? What is your priority? The government has to decide what is the priority. What about the farmers' plight? What about the Mahila Suraksha? What about the inflation? What about the jobs not being there for the youngsters? So where is the Maharashtra going? All this about this Arakshan also, I mean, it is like fooling them, and then somebody comes there and then talks about OBC, and then Maratha tries to break them. So all this, the priorities are absolutely distorted. I think they should all sit properly and then think about what is most important.
where the money should go. You're just doing some schemes, you're just draining the money out from one scheme to another and trying to just, take out time and just make a big show about the whole thing. So how can the government function that way? See, whatever it is, OBC, Maratha, everything has to be decided because they are also the main strength of Maharashtra. So everybody has a justified reason to ask for the reservation. It has to be decided. It has to be something which is legal has to be decided. Everybody has a right. Maybe the party. So, डॉक्टर मल्होत्रा, what Yes. you issue, आपने जो issue raise किया वो सही issue raise किया, and everybody is concerned about it. Everybody is, कल संजय राउत ने issue उठा लिया, आज रोहित पवार जी ने issue उठाया, ये 50 करोड़ का फाइनेंसिंग कहां से आया? 150 करोड़ एक दिन में जो खर्चा किया है, there is no name of the sponsor. किसने फंडिंग दिया है? तो ये पूरा आंकड़े लगाना कि ये काला धन था, ब्लैक मनी, कॉन्ट्रैक्टर्स और क्रिमिनल्स, ब्लैक मनी, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्रिमिनल्स सब मिलकर इस एक दिन का 50 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट उन्होंने फाइनेंस किया, बिकॉज फंडिंग का ट्रांसपेरेंसी नहीं है. There is no transparency. You have spent the money. Now this is what the opposition is trying to show the government कि आप क्या करें. छत्रपति से प्रेम, मराठा आरक्षण से प्रेम, देवेंद्र फडणवीस देवा भाव पूरे महाराष्ट्र में होर्डिंग लगा हुआ है. That is questionable. Dr. Malhotra. A political person should not be something like a god, which is, I think, in BJP it is happening many times. A political person is not God. Yes, he is a public servant. You can give other, definitely you can other. हम लोग भी opposition को जी ही बुलाते हैं. हम लोग भी फडणवीस जी उनको जी ही बुलाते, फडणवीस जी बुलाते. But to put them in some level which is above, near to God, that is very wrong thing. That is a very wrong practice. And I think all who has got the tender and all these investigations should be done. Ki who has got the tender? And the roads are in a terrible state. Yeah. You look at Punjab, you look at उत्तर प्रदेश. भाई देखिए, धरवाला साहब आपने उंगली उठाई, मैं आता हूं आपके पास. धरवाला साहब इसके ऊपर जरा आप रोशनी डालेंगे सर कि भले पंजाब हो, भले हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, और तो और छोड़िए महाराष्ट्र की हाईवे हो सर, जो हालत है सड़कों की, and you are saying that you have used space technology and you have used God knows what kind of technology to build these roads. सर इतनी बड़ी बड़ी खाइयां बन गई वहां पे, ये रोड मतलब क्या है? What's going on, sir? Darwala Sahab, please. Correct. Coming to the road issue, I will speak on it and I'll just take 10 seconds on the road issue. Please. It is connected to my heart. Over here, ma'am said, क्या आप जो है 40 रुपए एक ऐसे भाकड़ गाय जो होती है मध्य प्रदेश के अंदर, She didn't say it, I said it. या मैं वो नहीं, उन्होंने कहा क्या देश कहा जा रहा है, तो मैं उसका एक जवाब देना चाहता हूँ. इसके अंदर जो 40 रुपए हम प्रतिदिन मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर 2 लाख करोड़ का एक हमने बजट बनाया है. ये जानवरों के ऊपर जिसे लोग रास्ते पे छोड़ देते, वो गौ माँ को हम रास्ते पे छोड़ देते, जो दूध नहीं दे सकती, जो तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते, वो मनुष्य के बारे में तो मैं ये टीवी चैनल पे कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर हम 40 रुपए अगर ये सरकार उस पर खर्चा कर रही है, वो मुख्य जानवर के ऊपर जो अनाज नहीं मांग सकती, जो पानी नहीं मांग सकती, सर आप 80 रुपए खर्च कीजिए, जिसको जो सर 100 रुपए खर्च करो मांग रहे, उसके लिए अगर कोई सरकार यहाँ पे खर्चा सर बच्चों पे 12 रुपए, सर मनुष्यों के बच्चों पे 12 रुपए क्यों खर्च रहे हो? Sir, it is not that you are spending 40 rupees on cows. You spend 400 rupees. That should be appreciated. And at the same breath, you should say कि अगर 17 या 20 रुपए कुपोषित बच्चों पे अगर खर्चा हो रहा है, तो उसे आप बढ़ाइए 12 रुपए. तो आप उसको कंपेयर वो पैसे के साथ. So why don't you spend 100 rupees on kids and 40 rupees on cows? मगर so why don't you spend that money on children? कुपोषित के ऊपर जो आपने गूगल से अभी तो मालूम You're not saying why they are doing it on the cow. I haven't got it from Google. I got it from Madhya Pradesh government. Madhya Pradesh government की साइट है सर, वहां से मिला है. सर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट से है ये. 40 रुपए गाय पे और कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए. You are talking about children who are not being taken care of. Yes. It is so why are you spending 12 rupees on them? Noted.
but it should not be compared Why with not? the money that is being Why spent not? on the animals. Why should we who not? cannot speak Sir, certain why words. should we not? आपने यहाँ पर तारीफ करना चाहिए Why था। should we not? तारीफ करना चाहिए कि आपने ये कहना चाहिए था, मनुष्यों राजीव के सर। बच्चों के ऊपर आप 12 रुपए खर्च रहे हैं और गैया पे आप 40 रुपए खर्च रहे हैं। वाह, तो जबरदस्त। बुरा ही है। अरे सर कमाल हो उधर आ गई। रहा हूँ, राजीव सर, मैं उधर आ रहा हूँ। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली तो ब्रिलियंट सर। हम कम है। सर आप तो कमाल है सर। वही है राजीव सर। ओए, ओए, ओए। आप मुझे खत्म ही नहीं करने दे सर, रहे हो। बोलिए, बोलिए, You बोलिए। are talking as though you are on a debate. Sir, and you are बोलिए doing सर, a बोलिए। flagship program for Sir, don't tell me the way I am children talking. under- I am allowing you to talk. Please talk. Otherwise, I will also start commenting on the way you are talking. अगर हम 40 रुपए जानवरों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अगर हम बच्चों के ऊपर अगर हम नहीं कर रहे, जी। ये फिगर आपने जो गवर्नमेंट वेबसाइट से लाई है, बेशक सराखों पे आपकी यहाँ पे दी हुई जानकारी ये 100% राइट है, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं जो कहने जा रहा हूँ आप अगर मुझे खत्म करने देंगे, बोलिए सर। आपने ये बात को Please समझना बोलिए। चाहिए। ये चीज जो आप कह रहे हो कि 12 रुपए हम अगर कुपोषित बच्चों के ऊपर कर रहे, ऑन दी अदर हैंड यू शुड हैव फाउंड आउट जो बाल गृह हुए हैं, जो बालक आश्रम है, उसके अंदर हमने कितने बच्चों को, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस को सहायता दी है, वो फिगर आपने एट द सेम टाइम गूगल करना चाहिए था। बेशक अगर कोई यहाँ पर कमी है, खामियां है, तो हम यूपी और एमपी गवर्नमेंट तक ये बात लेकर जाएंगे, मगर व्हाट आई वांटेड टू फिनिश दिस स्टेटमेंट बाय सेइंग, क्या कल की जो रात में फिगर जो रिलीज हुई है, भारत जो 142 करोड़ जनता का ये जो देश है, जिसके अंदर से 80 करोड़ जो गरीब यहाँ पर देशवासी है, उनको 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाल के उनको अबव बिलो पॉवर्टी लाइन लाया है। ये वर्ल्ड के अंदर, ये वर्ल्ड को शॉक में डालने वाली चीज है, इसका किसी ने सराहना नहीं की। यहाँ पे हमारे मैडम ने कहा कि आपने ये देश को कहाँ ले जाके रखा है। बेशक हमने ये देश के अंदर जो 25 करोड़ लोग हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से नियो मिडिल क्लास बनाया है। नियो मिडिल क्लास और ओल्ड मिडिल क्लास, ये दोनों मिलकर अगर आप ये देश की लोक संख्या देखेंगे तो ये देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। देखो, खाली डिबेट करने के लिए यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, किसी को बुरा भला कहना बार बार ये आवश्यक नहीं है। मोदी जी और उनकी जो सरकार, जो ये मंत्रिमंडल जो काम पे लगा है, ये बेशक इतनी मेहनत कर रहे, और यहाँ पर मोदी जी जो हमेशा कहते हैं, जो प्रदीप सर का सवाल का मैं जवाब दे रहा, उनके लिए सिर्फ दो मनुष्य है, दो साम्राज्य है और दो यहाँ पर लोग हैं, एक तो हैव एंड द हैव नॉट, एक जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। और मैं, मेरी सरकार, मोदी जी की सरकार और हमारी सारी मंत्रिमंडल वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो गरीब तबका है। ये गरीब तबका को इस दर्जे तक लाके रखना है जब तक हम शासन में है, जब तक लोग जनमानस हमें वोट देके यहाँ पर लाते हैं कि हमें उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, उसके ऊपर हमको काम करना है। बेशक कुछ खामियां हैं, जैसे राजीव सर ने बताया कि कुछ कुपोषित लोग बच्चों पे हम 17 रुपए खर्चा कर रहे हैं। बेशक अगर ये चीज हमारे ध्यान में आती है, मैं हमारे मंत्रिमंडल को लिखता हूँ कि 17 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, 50 रुपए, 12 रुपए, जो उनकी आवश्यकता है सर 8 से 12 रुपए। एंड जस्ट वन मोर डिटेल, Darwala साहब, one more detail. Thank you very much for taking it so positively. One more detail. These figures, by the way, have not just come from the government of Maharashtra. They were laid on the floor of the house. मध्य प्रदेश असेंबली में ये फिगर्स दिए गए थे। सर, ये भी आपको बता दूं कि 40 रुपए गाय पे और 8 से 12 रुपए कुपोषित बच्चों पे। ये मध्य प्रदेश असेंबली में फिगर्स, they were laid on the floor of the house, sir. So all I am saying is, noted. all I am saying is very clear. This is because perhaps, you know how welfare schemes are made in various states. You know that quite well. Sometimes there is a skewed sense of priority. So as a result of which, because there is no one to speak for these kids, सर बच्चों का कोई वोट नहीं होता, सीधी बात है। अब बच्चे, मान लीजिए अगर ये मराठा रिजर्वेशन, अरे आ रहा हूं निजाम साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, अरे निजाम साहब आप ही के पास आ रहा हूं। अगर जैसे मराठा रिजर्वेशन में बात करूंगा सर जरंगे पाटिल साहब की तरह अगर बच्चों का भी वोट होता ना, तो यही फिगर जो है बच्चों के लिए 450 का होता। सीधी बात बोल रहा हूं सर आपको। निजाम साहब आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि पिछले 2 इलेक्शन जो है वो गाय माता पे ही लड़े गए। जी। तो गाय माध्यम है इनके वोट का, वो दूध दे ना दे,
वोट तो इनको देती है ना सर, जी तो वो वोट देती है इसलिए उसके साथ कुछ भी होवे, लेकिन वो बच्चे तो बेचारे कुपोषित हैं, उनके लिए सरकार केंद्र राज्य दोनों, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं 25 करोड़ लोगों को ऊपर लेके आ गया। अरे भाई 25 करोड़ को अगर आप लेकर आ गए तो 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो फ्री का अनाज तो अभी भी दे रहे हैं ना, तो 125 करोड़ तो आपके ही हो गए जो देश में किसी लायक नहीं है। तो बचा आपके देश में 125 करोड़ निकाल दीजिए तो 7 ही करोड़ तो बचे ना, तो 7 करोड़ लोग ही बचे देश में पैसे वाले। लेकिन एक चीज है, एक छोटी सी चीज, निजाम साहब ये सुनाने वाली चीज है, ये सुनने वाली चीज है सर। एक मिनट क्योंकि दारूवाला साहब ने कहा यू गॉट दिस फिगर फ्रॉम गूगल, सो आई हैड टू टेल हिम आई गॉट इट फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वेबसाइट। नाउ दारूवाला साहब एंड डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा, प्लीज लिसन। मध्य प्रदेश विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर निर्मला भूरिया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस सर, निर्मला भूरिया नाम है उनका। शी एडमिटेड दैट द फंड्स प्रोवाइडेड फॉर चाइल्ड न्यूट्रिशन for grossly insufficient, and she has made repeated requests to the Madhya Pradesh government to provide more funds। और इसमें 2024 की मध्य प्रदेश में CAG की रिपोर्ट है सर कि मोस्ट ऑफ द इनएडिक्वेट फंड्स, ये जो छोटे से फंड जो चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए भी आते हैं ना सर, उसमें भी करप्शन है। मतलब सोने पे सुहागा। निजाम साहब आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज जरा फिनिश कीजिए, उसके बाद आप मैं वही कह रहा था कि जो अभी वो आंकड़े दे रहे हैं, राजीव सर सुनिए, अली भाई अभी आंकड़े दे रहे थे कि हमसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा लिया, निजाम सर तो गरीबी से साथ अलाउद्दीन का चिराग है जिसको फंस दिया और 25 करोड़ ऊपर आ गए। और एक तरफ सर अली भाई अब सुनो, आप अब आपकी बात में ऐड ही कर रहा हूँ, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं देखो यहाँ पर आपसे सहमत हूँ, निजाम सर से सहमत हूँ, और राजीव सर ने ये जो वेबसाइट से ये जो प्रोग्राम और ये जो फिगर्स लिए हैं, जो हमारी भूरिया मैम ने, जो मंत्री मैम ने जो कहा है, क्या जो भी 12 रुपए 17 रुपए आते उसको 12 सर 17 रुपए क्यों अटके हैं आप? सर 17 का फिगर आपके पास कहां से आया? सर 17 का फिगर कहां से आया आपके पास? सर 8 और 12 का फिगर है, वो मंत्री बोल रही। नो सर, नो कहना चाहता हूं। अरे दारूवाला साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर, मैं जानता हूं आपको सर, मेरे साथ डोंट पुल माई लेग प्लीज। दारूवाला साहब प्लीज, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन। द फिगर इज बिटवीन 8, दारूवाला साहब फिगर इज बिटवीन 8 रुपीज एंड 12 रुपीज, उसको 17 मत करिए। अगर 17 हो गया तो आपके मुंह में घी शक्कर, हर एक को आधा ग्लास दूध मिल जाएगा सर, हर रोज का आधा ग्लास दूध मिल जाएगा बच्चे को, अगर 17 का फिगर है तो। सर 8 से 12 का है सर, ये मंत्री जी बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा, निर्मला भूरिया जी बोल रही हैं। इट इज बिटवीन 8 रुपीज एंड 12 रुपीज सर। तो निजाम मैंने पहले कहा कुछ बोल रहे थे, उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछता हूं। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, वोट कहां से आता है उसके लिए देश का कितना नुकसान होता है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी इन्होंने जब मुस्लिम इशूज पर लेकर इन्होंने बात की, एक भी केंद्र के सरकार ने, राज्य की सरकारों ने ऐसा कुछ बचाव नहीं किया जिसमें मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के धर्म स्थलों को तोड़ना, मुसलमानों के इशूज को लेकर बोलना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अली दारूवाला साहब यहाँ कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, ना इनकी पार्टी इनकी सुनती है, ना इनकी पार्टी इनसे बात करती है। अली दारूवाला साहब डायरेक्ट कह देते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा हुआ है, ये गलत है, मैं पार्टी से बात करूंगा। पार्टी से बात करके रिजल्ट दिखता है क्या? मतलब आप बहस का मुद्दा हो रखिए दारूवाला साहब, जिसको आप समाज को आप बता सकें। देखिए दूसरी चीज यह है कि आपको राजीव सर बोलेंगे जो जो आश्वासन मैंने दिया है 2 दिन में इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, आपको राजीव सर बताएंगे। सर मानना पड़ेगा, निजाम साहब मानना पड़ेगा, दारूवाला साहब की एक आदत है, यहाँ पर जो वो बोल के जाते हैं, टेक्स इट अप। निजामुद्दीन जी, आरएस आपने विरोध किया, खड़गे साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के बैक ऑफिस जैसा काम कर रहा है। खड़गे साहब ने कहा आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो, बिहार में पूरे आपने यात्रा निकाल दी है पूरे बिहार में कितने दिन का, मगर आरएसएस खड़े हो गए इलेक्शन कमीशन के साथ। आरएसएस कह रहा कि एसआईआर नॉट ओनली बिहार पूरे देश में होना चाहिए, और वो टोटली एक इलेक्शन कमीशन के साथ है। आरएसएस इलेक्शन कमीशन के हाथों में हाथ साथ में खड़े हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश में आप एसआईआर कीजिए। तो ये क्या है? आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो, बट आरएसएस कह रहे पूरे देश में होना चाहिए। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि वो सरकार की बॉडी है। लेकिन सरकार के बेईमानी के कामों में इलेक्शन कमीशन को नहीं खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बॉडी है जो सरकार की ही है, देश की है।
अगर वो अच्छा काम करती इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन तो कामचोर दलालों की हो गई। ये तो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और वो काम कर रही है जो पूरी देश थू-थू कर रहा है। आज देश में, आज आप इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने कभी इतनी बहस सुनी थी सिवाय टी सेशन के जमाने में? सरकार के अगेंस्ट था वो, लेकिन ये तो सरकार का दुम छल्ला है, कुछ भी बातें करता है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो इलेक्शन कमिश्नर कहता है। तो ये तो बेशर्मी की दलील है कि हम इलेक्शन कमिश्नर की कोई बात सुनने को तैयार, क्योंकि वो देश हित की कोई बात ही नहीं कर रहा है ना, वो संविधान की भी बात नहीं कर रहा, वो धोखा दे रहा है भारत को। आज नहीं तो कल आप देखेंगे क्या हालत हो रही है। आज आप 2-3 दिनों से आप अखबार पढ़िए, आप देश की जनता के हित के लिए चीजें बनाई गई ना। अगर कोई इंस्टीट्यूट कायम किया जाता है तो उससे जनता को क्या फायदा है? इस इंस्टीट्यूशन से बीजेपी अपनी नफरत को पाल रही है, बेईमानी कर रही है, लोगों को धोखा दे रही है, देश को धोखा दे रही है। तो क्या आप चाह रहे हैं, ये जो इंटेंसिव सर्वे हो रहा है, रिवीजन जो हो रहा है, इसमें जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको रहने दिया जाए? उनको तो हटाना पड़ेगा ना सर। इसमें मैं आपको पूछता हूं सर कि रहने देना नहीं रहने देना बात की चीजें आए कैसे? बॉर्डर किसके हाथ में था? इनके पास तो था ना सर, आए कैसे? सर बहुत पहले से आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के सर। बांग्लादेशी तो 1971 से हैं, बांग्लादेशी तो 1971-72 से हैं यहाँ पे। ऐसा है कि तब हमारे संबंध भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रहे, तब हमारे देश को कोई नुकसान नहीं था। आज हमारे साथ क्या हो रहा है और बॉर्डर के बाहर से क्या कर रहे हैं लोग, आप जान रहे हैं ना सर। तो इसको बचाने वाला कौन होना चाहिए था? फोर्सेस किसकी है? बॉर्डर सिक्योरिटी कौन देखता है? राज्य सरकार। लेकिन वोटर्स लिस्ट से तो उनको हटाना पड़ेगा ना सर, वोटर्स लिस्ट से तो उनको हटाना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं देश हित के लिए अगर आप समझौता कर लेंगे तो आप तो गद्दार हैं ना। फिर तो वोटर्स लिस्ट से तो हटाना पड़ेगा। समझौता करते हैं तो आप गद्दार हैं। तो आप बताइए तरीका क्या है? अगर कोई सर्वे नहीं होगा, अगर कोई सर्वेक्षण नहीं होगा तो क्या होगा? छिपाने की कोशिश करेंगे, अगर आप घटनाओं को अपने स्वार्थ के हिसाब से मोड़ेंगे, तब तो फिर अली भाई की तरह रिजल्ट आएगा कि अली भाई कुछ भी कहेंगे आपको सुन के चुपचाप जाना पड़ेगा। तो अमित शाह जी यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी का यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फिल्ट्रेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाला है। क्या ये सही है? और उनको अपने सिक्योरिटीज कहना पड़ा 2-4 आदमी बुला लो यार, कोई नहीं है। अभी उनकी पोजीशन छोड़ दीजिए, बहुत अकवर्ड है उनकी पोजीशन। देश गालियां दे रहा है, आज यंगेस्ट गाली दे रहा है, भूखमरी के कगार पर है, जो बहस होनी चाहिए। शाह साहब की आज डोली नहीं इधर उधर खसक रही है, क्या हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी विदेश से यात्रा करके रेटते हैं, पंजाब की तरफ देखना उनके लिए गवारा नहीं होता। बिहार चुनाव उनको याद आता है। आज गए तो थे, एरियल सर्वे किया है सर। आज गए, वो भी हवाई यात्रा में घूम के 15 मिनट में हेलीकॉप्टर। और कहां से जाए सर? तरीका ही नहीं और जाने का। और निजामुद्दीन जी मणिपुर भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आप जाना ही पड़ेगा। आप बोल रहे थे कि मणिपुर भी जा रहा है, मणिपुर भी जा रहा है। अब उनको मणिपुर भी जाना पड़ेगा, कांग्रेस दफ्तर भी जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब वो दूसरे रास्ते सब जनता तय कर रही है। अब जनता जो है इतनी जागरूक हो गई है कि ऐसे रास्ते तय कर रही है कि उसके बाद कहां उनको जाना है, इसलिए अभी सब चलो। चलिए, अभी ऐसे हालत आ गई है। Dr. Malhotra, you wanted to say something? Then I would like to go back to. I wanted to say something. That then I would like to go back to to Ali Daruwala. There is some good news. There is some good news I would like to share with everybody. जी बोलिए please. Yeah, इतने महीने के बाद में he's just deciding to go to Manipur. After where 3 he should years. have gone. Like we have been talking, I think for the last so many months we have been talking always that why he's still not gone, why he's still not gone, and this is like as a he's now going as an afterthought, because of the political pressure, just to the political correction. He's just doing the political correction. That's it. 13 September. Dr. Malhotra, 13 September is going to Manipur. 13 September. वो भी इतना और तब तक उनके ज्योतिषी ने उनसे नहीं कहा था, उनके ज्योतिषी ने अब कहा कि वहां ओट की फसल तैयार हो गई है, अब आप चलिए। उसके पहले तक उनके ज्योतिषी ने उनको मना किया, इसलिए वो हिले नहीं। इतने बाहर गए, इतने धार्मिक व्यक्ति है, ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। इतने बार आउट ऑफ इंडिया गए कि एक मणिपुर जा नहीं सकते थे लोग। तो मणिपुर में ज्योतिष से वोट का सौदा है ना मैडम, वहां वोट उनकी फंस रही है। देश को जवाब देना है और विदेश में उनको जवाब नहीं देना है, क्योंकि सुब्रमण्यम, मैं जब शुरू का डिबेट चालू था तो मैं दारूवाला साहब को बताने चाह रहा था, जब वो कह रहे थे, राजीव बजाज सर ने एक सवाल पूछा था कि उनके साथ किसी की फोटो जोड़ते हैं राहुल जी की। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का लेटेस्ट स्टेटमेंट है 3 दिन पहले,
बिल्कुल साफ तौर पर मोदी सर जी और उसको रिपीट मत करिए सपना जी को लेकर सर उसको रिपीट मत क्या बीजेपी का कोई नेता उस पर बोलेगा? सर उसको रिपीट मत करिए प्लीज और खुलेआम वो बोल रहे हैं, I रोज don't बोल have रहे any- हैं। सर एक बार नहीं बोला Sir, I will not take वो responsibility लगातार for that. बोल रहे हैं, No, खुद Dr. बोल रहे हैं Malhotra, I want to स्वामी ask जी, you- और वो बीजेपी के सांसद डॉक्टर हैं। मल्होत्रा, डॉक्टर मल्होत्रा तीन Sir, एक्स इलेक्शन कमिश्नर ने डॉक्टर मल्होत्रा तीन एक्स इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ओपनली कि अब के जो कमिश्नर हैं वो राहुल जी पर ऐसे टोकना नहीं चाहिए था कि एफिडेविट दो मैं इंक्वायरी करूंगा, एफिडेविट दो मैं इंक्वायरी करूंगा। तीन फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर जो थे, कुरैशी साहब थे, रावत साहब थे, लवासा जी थे, तीनों कहा कि एज एन इलेक्शन कमिश्नर हमारा ड्यूटी बनता है कि अगर ऑपोजिशन लीडर कुछ क्वेरी सामने डालता है तो उसको गुस्से से एफिडेविट मांगते नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं देश हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। हाउ डू यू सी दिस three ex-election commissioner castigating the current commissioner? Dr. They are Malhotra. not, yes. They are not answer. I mean, they are answerable. They have to, whatever the queries come, they should openly discuss it and give whatever the answers and all. उसमें गुस्से वाली क्या बात होती है कि ऑपोजिशन लीडर कुछ पूछेगा तो गुस्सा करेंगे और अदरवाइज कुछ भी अपनी मनमानी करेंगे। यही तो सब चालू है इलेक्शन कमीशन की। उनकी जो निवडणूक प्रक्रिया है उसमें भी देखिए ना, जो अपोजिशन लीडर को तो उनको तो पूछा नहीं गया, एससी ने भी अपने उसके ऊपर ये जो उनकी जो निवडणूक प्रक्रिया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वो देमसेल्व्स जो मतलब ऐसी बॉडी है कि जो बीजेपी की साइड लेती है, हमेशा बीजेपी के साथ ही बात करती है। इट इज एज इफ लाइक दे आर जस्ट वर्किंग फॉर बीजेपी। दे डोंट हैव अ सेपरेट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, जो न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, तो ये न्यूट्रलता उनमें है ही नहीं। सो ऐसे इलेक्शन कमीशन से क्या एक्सपेक्ट करने का? तो कहने का मतलब ये हुआ दरवाला साहब कि एटलीस्ट एज फार एज द इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न एंड अदर्स आर कंसर्न, instead of adopting such an aggressive pose like this gentleman, क्या नाम है इनका, ज्ञानेश गुप्ता, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो हैं, भाई इतने एग्रेसिव क्यों हैं सर, ये इतने आक्रामक क्यों हैं? वही जवाब हंस के भी दे सकते हैं ना। वो बोलते हैं भाई वी वर्क विद यू, वी विल कन्विंस यू ऑफ आवर सिंसियरिटी। ऐसी क्या बात है दारूवाला साहब? Why does he have to be so aggressive and so angry all the time? And defensive. Why? You know? What for? Angry when he is मतलब- defensive. All I am saying is, सर गलती हर एक से हो सकती है, ऐसी क्या बात है? It's a very big country, as the Supreme Court said. अरे भाई, you have to accept, like Supreme Court का ऑर्डर अब आया ना कि आधार कार्ड को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले तो वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे एज अ दिस थिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, as a document of identification. Can I answer you? Yes, of course, sir. Dr. Please. Over I'm here, waiting the for you to election answer. commissioner, he is very agitated, as what I can see on the video that you are displaying, क्योंकि उनको निजामुद्दीन जैसे उन्होंने बोला चोर है, कायर है, उनको सजा देना चाहिए, शिक्षा। जब देखो सर, आप और मैं सुन सकते हैं, हमारी चमड़ी थोड़ी जाड़ी है पॉलिटिक्स में, मगर ये हाई लेवल पॉलिटिशियन जो होते हैं सर, ये पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा पॉलिटिशियन है सर, ये ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन नहीं है सर। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं सर, उनको चोर कहना, नहीं जैसा निजामुद्दीन जी की लैंग्वेज है, शायद वो वॉबल हो गए रहेंगे करके उन्होंने कहा, कहने का एज अ ब्यूरोक्रेट में सर, गिव मी प्रूफ, गिव मी एफिडेविट और आई टेक एक्शन ऑन यू। आई थिंक वी शुड टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड लेट इट गो। सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप दैट आधार कार्ड को ग्रहित धरिए। नाउ लेट अस मूव ऑन। आई एम टू सेइंग लेट अस मूव ऑन, लेट अस गेट द कास्ट सेंसस डन, लेट अस गेट द आधार कार्ड By the way, some good news. implemented. And Sir, the good news. May I say something? India and China have just signed a new treaty. Let me tell you I'm this. coming to that. You will come to it. You will come to know about it tomorrow, day after. The details will be out. But I'm coming to the sir, good news. सर Rajesh, जितना भी अमेरिका में हमारी सेल थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, दारूवाला साहब, निजाम साहब और डॉक्टर मल्होत्रा, एटलीस्ट 30% of it will be absorbed by China. At least 20% of it will be absorbed by Russia. तो 50% का तो जितना भी धक्का लग रहा था वो खत्म हो गया। आप दारूवाला साहब आप बोलें, प्लीज गो अहेड। सो ग्रेट न्यूज, फैंटास्टिक, बोलिए। Great news. I'll add sugar to the milk that you have already given over here. I am saying you should not be surprised. अब जो कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी एंड हमारी जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी फेल हो गई। यहाँ पर डिप्लोमेसी क्या लेवल से सक्सेसफुल है, अगर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, निजाम साहब आप सुनिए, मैडम आप भी सुनिए, अगर नेक्स्ट 10 डेज में अगर ट्रम्प जी ने 50% टैरिफ को अगर रिवर्स नहीं किया, तो डू नॉट बी सरप्राइज, देयर विल बी अ ब्रेकिंग एंड शैटरिंग न्यूज दैट ट्रम्प रिवर्सेस दिस 50% टैरिफ ऑन इंडिया। क्योंकि जो इकोनॉमिक और जो वर्ल्ड प्रेशर, जो IMF प्रेशर जो ट्रम्प के ऊपर बन रहा है,
and the agency that our country has hired, this did not come in the public domain. We have hired an agency who does the rapport building and talking to the White House, talking to the bureaucrats. Headed by a man called Jason Miller. Headed by a man called Jason Miller, who was part of the Trump organization. Has Yes. hired that agency. और आने वाले 5-10 दिनों में अगर ट्रम्प साहब ये अगर इसको इसीलिए मैंने जब भी कहा I said a powerful nation, a president of a powerful nation, there was no point taking him head on and talking badly, because there was a iota of doubt that Trump sir might come into pressure and this tariff may be withdrawn. So you will see India किस तरीके से काम कर रहा है. जो बोलते ना विश्व गुरु इमर्ज होने का ये एक शुरुआत है. हम एक छोटी मोटी यहाँ पे बातचीत को लेके किसी को पर्सन अटैक करते हैं. ये वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू गो अबव, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, ये भारत की जो सभ्यता हर रिलीजन की, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, राजीव सर, प्रदीप सर, मलयाली, हम लोग इतने बड़े दिल के लोग हैं, जो भी गलती उसको हम माफ करके आगे बढ़ते हैं. मोदी जी I appreciate what Adi Daruvala saying. भारत के लिए काम कर रहे हैं. दारुवाला साहब, आज जो आप बात कर रहे हो वही इजराइल के फॉर्मर चीफ, उन्होंने कहा, बोले नेतन्याहू जो अभी के उनका प्रधानमंत्री है, उनको मोदी साहब से सीखना पड़ेगा. ट्रंप के सामने मोदी जी झुके नहीं, ये पूरे दुनिया ने देखा. दैट इज व्हाट द इजराइल फॉर्मर डिप्लोमेट सेड. ही सेड नेतन्याहू को कुछ सीखना पड़ेगा. ट्रंप ने सोचा कि मोदी जी जाके उनको अपोलोजाइज करेंगे, उनसे जाके मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और कहेंगे आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन. बट मोदी नेवर डिड दैट. मोदी टुक ऑन ट्रंप. एंड टुडे, आज के तारीख में चाइना भी इंडिया की तरफ से बात करने लगा. हाउ डू यू सी द वर्ल्ड पोजीशन दारुवाला साहब? जिस प्रकार से मोदी साहब का सब जगह, ये ऐसा जब हाई लेवल इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन होता है ना, उसमें डिबेट में पार्ट लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है. ओवर हियर यू आस्क्ड मी सच अ रेलेवेंट क्वेश्चन. Over here, we were accused, India was accused of blood money, buying Russian oil, buying Russian equipment, buying Russian aircraft, buying Russian artillery is like providing money to fight a battle. Sir, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा. यहाँ पे जब हम व्यवहार कर रहे, ट्रेड कर रहे, ऑन द सेम साइड मोदी जी ने पुतिन को ये भी कहा, क्या आप रिफ्रेन करिए अटैक करने से, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक करने से अब रिफ्रेन करिए, बम्बार्डिंग बंद करिए, जान की जो यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है ये मत करिए. एट द सेम टाइम उन्होंने शाई नहीं किया. उन्होंने पुतिन को, राष्ट्रपति को भी ये कहा कि आप ये मत करिए. ऐसा नहीं कि उनके हाँ में हाँ भरी है. सर, ये बात आपने जानना चाहिए. आज चाइना के साथ में जो हमारे संबंध सुधरे हैं ना सर, वो इसलिए सुधरे हैं क्योंकि उनके ये समझ में आ गया क्या इंडिया के ऊपर अटैक करके नहीं चलेगा, इंडिया को आंख दिखा के नहीं चलेगा. इनफैक्ट जो सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है, उसके ऊपर जो एयर सुप्रीमेसी, आर्मी सुप्रीमेसी, और जो हमारी नेवी और आर्टिलरी और जो हमारे एयरफोर्स ने जो कामगिरी की है ना, उससे डर कर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, चाइना हैज फॉलन इन लाइन. Everybody will fall in line. America will fall in line. Because of diplomacy, because of hierarchy, and because of the steel-fisted of this But government. one thing we must पूरी appreciate. दुनिया लगी है, पूरी ताकत लगी है, पूरे ने क्या? Sir, we've मीडिया been लगी saying है, it over here for a long stabilize time. करने के लिए. सर, जब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ्स लगाए हैं, मैं तब से बोल रहा हूं कि ये टैरिफ जाएंगे. You can see our video of, what is the date? I think August 22nd. Where I've said very clearly, Mr. Trump will have to withdraw these tariffs within 6 to 8 weeks. That's what I said. Number one. Number two, sir, we must appreciate the fact that Mr. Modi has refused to be drawn into a slanging match. In fact, Trump had to tweet कि I have mentioned him so many times, he is not even replying. मोदी साहब ने एक बार भी ट्रंप का जवाब नहीं दिया. सिर्फ एक बार जब उसने अच्छी बात कही तो मोदी साहब सेड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वी रिगार्ड यूएसए एज आवर फ्रेंड, सो नाइस ऑफ यू, दैट्स इट. सर, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं दारुवाला साहब, अगर आज हिंदुस्तान जो जेनेरिक ड्रग्स हैं वो सप्लाई करना बंद कर देना अमेरिका को, so the American public will be deprived of all over the counter drugs. They will get nothing. India is the pharmacy of the world. फार्मेसी है पूरे दुनिया की आज हिंदुस्तान. I can see Dr. Malhotra nodding her head. If today we decide we are not going to send these drugs over to you, the Americans themselves, they will घेराव the White House. आप कुछ बोल रहे थे दारुवाला साहब, बोलिए प्लीज. नहीं, मैं ये लोग से ये कहना चाहता हूँ, राजीव सर की बैकग्राउंड लोगों को नहीं मालूम.
प्रदीप सर को भी शायद नहीं मालूम रहेगा कि आपने संघ में कितने साल काम लगाया है, कितने साल काम किया है। राम जन्मभूमि में ये आंदोलन में आप किधर थे, ये लोगों को नहीं मालूम, मगर यहाँ पे पार्टी के तहत नहीं, संघ के तहत, और आपका जो निष्ठा है प्रभु श्री राम के तरफ, उसके लिए जो आपने काम किया है। आप यहाँ पर मोदी के लिए कभी अच्छी बात करते हो तो आप कभी नाराज भी होते हो, आप एकदम एक फेयर स्टैंड लेके काम करते हो। मगर ये सिचुएशन में लास्ट 1 मंथ की जो सिचुएशन है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, पाकिस्तान में जो हुआ, जाति को धर्म को पूछ के जो लोगों को मारा गया, आपने जो संयम रखा है, आपने एक जो नैरेटिव डिबेट के ऊपर स्टार्ट करते हुए जो आपने चलाया है, आपने जो स्ट्रॉन्ग प्रदीप सर है, और आपने जो स्ट्रॉन्ग एक जो आपने डेकोरम इस पे यहाँ पे मेंटेन किया, इसका मैं सराहना करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप लोग रिजल्ट ओरिएंटेड, ये जो डिबेट्स यहाँ पर हो रहे, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए हम लोग नहीं आते। यहाँ पे राजीव सर, प्रदीप सर शो के बाद में स्टॉक लेते हैं। आपने ये आश्वासन दिया था, इसका क्या हो गया, सरकार क्या कर रही है। जैसा आपने रास्ते के बारे में कहा था, मैंने कहा बेशक इसके ऊपर मैं आपसे 10 सेकंड मांगूंगा, ये रास्ते के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। सरकार हमारी हो, किसी की भी हो, रास्ते के लिए एक अनुदान होना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कोई भी पक्ष के हो, वो हमारे पक्ष के लोगों के साथ भी अगर संगमत हो, उनको इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए। क्योंकि सर जब रास्ते पे एक्सीडेंट होता है ना, वो कौन है वो नहीं देखते, वो आपके हमारे रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले, उनकी जब एक्सीडेंट होते हैं ना सर, ये आप उनको माफ नहीं कर सकते। एनी पार्टी आई विल नॉट फॉरगिव देम, एंड आई एम इवन सो एंग्री दैट द रोड नीड टू बी डन। वो इतने बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, रास्ते को आप निग्लेक्ट कर रहे हो, ये गलत बात है। मैं आपके साथ में निजामुद्दीन जी, ये तीन एक्स इलेक्शन कमिश्नर्स ने आलोचना किया करंट इलेक्शन कमिश्नर का, ये बहुत गंभीर एक सिचुएशन है, जहां उन्होंने कहा कि एफिडेविट मांगने का कोई जरूरत नहीं था आज के इलेक्शन कमीशन को, उनको राहुल जी के जो सवाल था उसका जवाब देना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा कुछ, आप उसमें कुछ कहना चाहोगे? सर पूरा देश जानता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक हैसियतमंद पोस्ट होती है। अगर वो कोई सवाल करता है किसी भी संस्थान से, तो संस्थान की जवाबदारी बनती है कि उसे उसका जवाब दे। और सिर्फ वो 3 इलेक्शन एक्स इलेक्शन कमिश्नर नहीं, देश के 150-200 से ज्यादा सीनियर मोस्ट आईएएस और आईपीएस अफसर और रिटायर्ड जजेस ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को बहुत सारे विषयों पर। तो ये गंभीर विषयों पर कब आपसे चर्चा करते हैं? ये तो मानते नहीं किसी चीज को, ये तो सरकार के आदेश को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। ये तो एक ढिठाई है और बेईमानी कराने का एक तरीका है। अगर प्रधानमंत्री या इनकी सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता रहे तो इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त करना चाहिए। इस विषय को लेकर बर्खास्त करके जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है उनको चार्ज देना चाहिए। बेईमानी तो माननीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम में उसी वक्त आ गई थी जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन की कमेटी में नहीं रखा, निकालकर उसकी जगह पॉलिटिकल आदमी लिया। तो ये बेईमानी करने का तरीका तो सर पहले से लागू किया ना इन्होंने, तो आज सुनने की ताकत ही नहीं है उनमें, क्योंकि वो वही अच्छा आज जो इलेक्शन कमिश्नर महोदय हैं, आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए 10 वर्षों में। 10 वर्षों में उन्होंने अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि ससुराल, बेटे की ससुराल, बेटी की ससुराल, सबको मालामाल कर दिया। सबको हाई जगहों पर, मलाईदार जगहों पर उनकी पोस्टिंग कर दी। खुद की बेटी को नोएडा में कर दिया, अलग अलग जगहों पे लोगों को कर दिया। तो सारा चीज जो है गंभीर विषय है, जांच का विषय हो गया है। उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं सरकार, तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम तो चिल्ला ही सकते हैं। लेकिन एक चीज तो है निजाम साहब, जरा सड़कों के ऊपर कुछ कहेंगे सर, जो हाईवेज हैं मुंबई में। बाय द वे देखिए, सर, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के फुटेज हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वयं के फुटेज हैं, जो बार बार कहते हैं सर हमने ये सारी चीजें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाई है। और हालत ये हुई कि जिस गुजरात का ग्रेट मॉडल दिखाकर इन्होंने देश को धोखा दिया, वहां गाड़ियां अंदर चली जा रही 6-6 फुट। और महाराष्ट्र में हम लोग ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया और तीसरे दिन सड़क टूट गई। अटल सेतु पर बड़े दरार पड़ गए। तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंत्री जी बनाने गए थे, लेकिन जिन ठेकेदारों को इन्होंने ठेका दिया उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। जी, अगर ठेकेदार सर, ब्रिजेज जो गिरे वो तो सब उसी के अंडर में आते हैं ना रोड में। ऐसे ब्रिजेज गिरे गुजरात से लेके बिहार तक, तो क्या उसको राहुल गांधी बनवाने गए थे?
तो सरकार ने उन पर Dr. कितनी Malhotra, कार्रवाई would you की like to say है? something on this? Yes, Dr. absolutely. Malhotra. I mean, a place like जो आर्थिक राजधानी है इंडिया की, तो वहाँ मतलब मुंबई जैसी जगह में कितने खड्डे हैं, आप मतलब कैसे हम लोग चलाते हैं गाड़ियाँ चलाने में, मतलब इट इज लाइक सिटिंग इन अ झूला ऑल द टाइम. एंड व्हाट अबाउट द बैक पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन. देयर आर सो मेनी पेशेंट्स व्हिच कम टू अस फॉर बैक पेन. It is a constant nagging thing which always is going on. Or as he said very clearly that contractors should be held responsible. Otherwise ये तो चलता ही रहेगा, इसको कुछ मतलब ही नहीं है. रोड्स बनाते थे, वापस उसको डिग करते हैं, then as an afterthought वायर्स वगैरह डालने के लिए सब लोग वापस आ जाते हैं, वापस खुदाई करते हैं. There is no planning at all, and there is nobody who is taking the responsibility. यहाँ पे तो हर वार्ड में तो कॉर्पोरेटर्स ही नहीं है, एंड जो अधिकारी है वो तो अपना कुछ मतलब देयर इज सो. कितने दफे हम लोग वहाँ गए, बीएमसी भी गए हैं, उनको लेटर्स दिए हुए हैं, उसका कुछ फायदा ही नहीं होता. लेकिन मैम इस बार मुंबई में इतना ज्यादा इतनी ज्यादा त्राई नहीं मची, ये तो मानना पड़ेगा. इस बार बीएमसी ने काम किया है, ये वी मस्ट. नहीं बीएमसी ने कुछ शहर डूब गया सर, पूरा शहर डूब गया, क्या के लिए बीएमसी ने काम किया है? It is absolutely horrible. And when we come to say, no, it will be done after 4. This was like 4-5 months back. We were told, they said, नहीं, अभी rainy season है. The work will start in October. We are just waiting when it will start. In fact, I had Ganpati at my residence, and the first thing I must have prayed was, please, हमारी सड़कें बराबर कर दो. Because it's absolutely very bad for the people. डॉक्टर मल्होत्रा, रोहित पवार जी ने बहुत बड़ा इशू निकाला. उन्होंने कहा कि कुंभ मेला का जो काम चल रहा है आज, कुंभ मेला में जो काम हो रहा है वो पूरे काम कॉन्ट्रैक्टर्स गुजरात से और तेलंगाना से आ रहे हैं. महाराष्ट्र के कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई काम नहीं मिल रहा. ये रोहित पवार जी का स्टेटमेंट है आज ही. उन्होंने कहा यू हैव टू प्रमोट फॉर स्मॉल वर्क्स. महाराष्ट्र में बसे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना चाहिए. ये फिर आप गुजरात और तेलंगाना में क्यों बांट रहे हो? नाउ कुंभ इज अ ग्रेट इवेंट. इट्स अ ग्रेट इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर. डॉक्टर मल्होत्रा, दैट इज वेरी ट्रू. महाराष्ट्र को हर चीज में महाराष्ट्र को सौतेला क्यों बना देते हैं? इट इज सौतेले जैसे ट्रीटमेंट. व्हाई दे आर गिविंग सच अ ट्रीटमेंट टू महाराष्ट्र? इज इट दैट महाराष्ट्र में सब जो यूथ है वो अपने अच्छे जॉब लेके, व्हाई फ्रॉम गुजरात मैम? Why from Gujarat? Yeah. Why not from Maharashtra? अरे महाराष्ट्र में भी लोग मेहनत करते हैं. इट इज नॉट दैट ये जो कुछ चुने गिने कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका वो मतलब खराब काम कर रहे हैं. दैट डजंट मीन दैट द होल महाराष्ट्र द पीपल आर वी डोंट हैव गुड वर्कर्स. वी हैव गुड वर्कर्स. उनको आप चांस नहीं देंगे तो कैसे आगे आ जाएंगे? दुरुस्त बात है जी. दारूवाला साहब, I just want to ask one more thing. Dr. Malhotra, it's a very recent topic. अजित पवार जी ने जिस प्रकार से आईपीएस अंजलि कृष्णा से बात किया, ये चर्चा का विषय है. और करप्शन इसको दे रहे कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने पूरा खजाना खाली कर दिया, पूरे महाराष्ट्र को लूट लिए, और बाकी उनके साथी को बचाने के लिए इन करप्शन अजित पवार जी फिर फोन करते हैं. तो हाउ डू यू सी दिस? इज करप्शन लार्जेस्ट जिस प्रकार से चल रहा है कि आईपीएस ऑफिसर को कहा कि न मत कार्रवाई करो? बेसिकली क्या आईपीएस ऑफिसर के जो भी उनको कहना था, जो भी बात उनको कहनी थी कि काम का क्या है, क्यों, किसके लिए वो बोल रहे थे कि वो काम रुकना चाहिए, जो भी है, there is a way of communicating. I think it is more, you should be giving the proper letter, you should be submitting a letter, it should be and whatever it is, it should be an official communication. It should not be something that you just phone and just threaten somebody. And I think she was very right to ask that who is talking. I don't know who is talking. I mean, who is the person? And if she is asking that call on my number, or so at least I'll come to know who is talking with me. So what is wrong in that? और वो अपनी ड्यूटी कर रही है वहां पे. पेपर मुरम की उत्पादन हो रही, खुदाई हो रही है. For what whether the permission is there or not. So what is wrong is that she is doing her duty, and I think she is very well educated lady, and she has got good merit also. So इसमें जब इनके जो प्रवक्ते लोग हैं वो बाकी बाद में बोलते हैं कि नहीं हम लोग देखेंगे कि उसकी डिग्री बराबर है क्या, और हाउ शी इज गॉट शी इज कम टू दिस लेवल एंड ऑल. ये सब तो गलत चीज है. तो ये किस प्रकार की चीज है? आईपीएस, शी इज क्लियर्ड हर यूपीएससी. ये तो गलत बात है ना. दुरुस्त बात है. डॉक्टर दारूवाला साहब, करप्शन एट द हाईएस्ट.
संजय राउत ने कहा कि आपने पूरा तिजोरी तो खाली कर दिया है, करप्शन एकदम उच्चतम सीमा पर है, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पूरे महाराष्ट्र को लूट लिया, अब बाकी कार्यकर्ता बाकी काम कर रहे हैं, करप्शन एट द हाईएस्ट। अली दारूवाला साहब, अजीत पवार कॉलिंग अप द आईपीएस ऑफिसर, स्टॉप इंक्वायरी। डॉक्टर दारूवाला साहब, सबसे पहले देखो, एक अजीत पवार जी का एक काम की शैली है, उनका एक तरीका है काम का। ही इज अ हेड ऑन मैन। अगर कोई उनके पास जाता है तो इंस्टेंटली वो काम करके अधिकारी से कहते हैं काम करने के लिए। जैसा मैम ने कहा कि मेरे फोन पे फोन करिए, बोलिए, ये सब इतना हाईलाइट करना, इसको पब्लिसिटी देना, एक ब्यूरोक्रेसी शासकीय काम के अंदर। मैडम भी शरद पवार जी के, आई सपोज शी इज फ्रॉम दैट ग्रुप, शी इज अ स्पोक्स पर्सन। शरद पवार जी की भी जो आदत है वो डायरेक्टली अधिकारी को फोन करते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता कोई विषय लेकर मंत्री जी के पास, शरद पवार जी के पास, ये लोग के पास जाता है तो वहां पर उनका निवारण करना चाहिए। ऐसा टोन कभी यूज नहीं करेंगे। एंड इफ समबडी सेज कि आप फोन करिए मेरे, ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज बीइंग सेड। अजीत पवार जी, मैंने कहा आपसे, कभी ऐसे बातचीत तो कभी करेंगे शैली होती है, उन्हें ऐसा लगा है कि ये लैंग्वेज रफ। देखो, मैं यहाँ पे सराहना नहीं कर रहा हूँ, मैं एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर नोइंग अजीत पवार जी फॉर सो मेनी इयर्स, उनका एक बात करने का जो लहजा है, उनका जो तरीका है, उन्होंने जो काम किया वो कार्यकर्ता को उस मोमेंट जो डिफ्यूज एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के तहत वो काम किया है। मगर इसे वायरल करना, इसे भेजना, जब तक देखो अधिकारी भी काफी होशियार होते हैं, उनको मालूम है जब तक कोई लेखी उनके पास आदेश नहीं आता ये काम तो रुकने वाला नहीं है। मगर वो कार्यकर्ता के दिल में एक ऐसा एक महानता वो अपने नेता के लिए आती है कि बस देखो, काम भले हो या मत हो, भले वो अधिकृत हो या अनधिकृत हो, मगर उस वक्त के लिए वो कार्यकर्ता का जो मनोबल बढ़ता है, ये राजकीय लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों बढ़ाना चाहिए? आप लोगों के सामने क्या, मैंने कहा अधिकृत हो या अनधिकृत हो, वो वक्त के लिए जब कोई नेता अपने कार्यकर्ता के लिए एक फोन उठाता है, अधिकारी से बात करता है, वो काम भले उस वक्त नहीं होएगा। मैं नहीं कह रहा कि वो अधिकृत काम है, लीगल काम है, बात करने का क्या ले जाता, अधिकारी लोग जानते हैं। बाद में मंत्री महोदय से, डेप्यूटी सीएम ऑफिस से उनका इंटरेक्शन हमेशा चालू रहता है। मगर ये बात को एक पब्लिसाइज करना, एक इतने बड़े सर आप लोगों ने पब्लिसाइज किया ना, आप लोगों के सामने कितना गलत इंप्रेशन बना रहे हो। इट इज नॉट द आईपीएस ऑफिसर हु पब्लिसाइज कि आप सब जो है, ये एक पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, प्रभाव डालेंगे कार्यकर्ता को खुश रखने के लिए वो ऑन द स्पॉट। और अजीत पवार जी एक ऐसे आदमी है, आप लोगों को क्या बता रहे हैं? कार्यकर्ता को चक्कर मारने नहीं लगाते। दारूवाला साहब एक मिनट, मराठी में दारूवाला साहब एक सेकंड, एक सेकंड, ये है अजीत पवार। एक सेकंड सर, सर एक सेकंड, इट इज डिबेटेबल, राइट। सो डॉक्टर दारूवाला, अली दारूवाला साहब, मान लीजिए आज एमबीए की सरकार होती और ये इंसिडेंट होता तो आप यही बात बोलते? आई एम श्योर, राइट सर। अगर मान लीजिए अजीत दादा पवार एज डेप्यूटी सीएम इन दी एमबीए गवर्नमेंट would have used this kind of language with a bureaucrat, आज बीजेपी का रवैया यही होता, राइट? जो उनके साथ में सरकार में काम किए, उन्हें अजीत पवार जी की लहजा, उनका टेम्परामेंट, ये लोगों को मालूम है। मैं यही कह रहा हूँ आपको। सर लैटराइट की चोरी कर रहे, काम करते हैं सर लैटराइट की सिलिका और लैटराइट की चोरी कर रहे थे सर चोरी हो रही थी सामने, डकैती सबके सामने, माइनिंग, इलीगल माइनिंग ऑफ लैटराइट वाज टेकिंग प्लेस। क्या बोल रहे हैं? और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं आपकी बहुत डेयरिंग हो गए, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, तो आपको क्या पनिशमेंट, यानी मैं क्या ट्रांसफर कर दूंगा, क्या ट्रांसफर कराऊंगा, सजा दूंगा। ये क्या देश को क्या समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रशासन को कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो? निजामुद्दीन जी क्या सही लग रहा है आपको? तुझे लई डेयरिंग ज्यादा है आपका लई। ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा था। आपको याद होगा जब देश का विषय था और सोफिया के ऊपर उनके मंत्री ने जब थर्ड क्लास का कमेंट किया था, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो गई सर। और आज तक वो मंत्री है, जब वो मैं आज तक मंत्री है। कहता हूं तो अली भाई को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये इसी करतूत के लोग हैं साहब। ये किसी का सम्मान कर ही नहीं सकते। जब देश हित में काम करने वाली कर्नल सूफिया के साथ इन्होंने ये व्यवहार किया था कि वो एक महिला थी और सम्मानित महिला थी और उनका एक बड़ा रोल था देश के उस युद्ध में, उनके साथ जब इस तरह का व्यवहार कर रहे थे तो यहाँ क्या है, ये तो बेचारे
सरकार इनके बस में है, जो चाहे करें, यही तो कर रहे हैं ना मोदी साहब की गवर्नमेंटों में। And जो दारूवाला अधिकारी साहब, जेलों that में पड़े person हैं, is still a वही करते minister. हैं। दारूवाला साहब अभी भी मंत्री है वो, क्या उनको है? निकाला नहीं है कैबिनेट से। अभी भी आप कोर्ट के आदेश मानने को तैयार नहीं है। जी, he is still a minister in the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जी दारूवाला साहब बोलिए। Yeah, नहीं, I will just take your leave from the show. I will thank. Sir, you won't everybody comment on the for- Madhya Pradesh minister? No, I सर, don't know. It's a पिछली बार भी आप भाग गए थे यही कह के। He has to be thrown जब out. आपके ऊपर कुछ आता है अली भाई, तो आप सीधा बोल देते हो मैं जा रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह जाना है। कोर्ट ने फटकारने के बाद राजीव सर, प्रदीप सर और मैं कौन है कहने वाले सर? उन्हें माफी मांगी, बात खत्म। सर लेट्स मूव ऑन। कहाँ माफी मांगा उन्होंने? कोर्ट ने Right. उनको बहुत खराब तरीके से फटकारा Right, है। Daruwala ये साहब, thank you सारी very चीजें much. देता है। Thank you Thank very you, much Rajiv and sir. congratulations. Thank you. And congratulations, your petroleum business is doing really very well indeed. Daruwala साहब has become a very rich man. Thank you very much, sir. नमस्कार। Thank you. नमस्कार। लेकिन एक बात तो है, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगर एमबीए सरकार के दौरान अजीत दादा पवार इस तरीके से बात करते किसी भी आईपीएस ऑफिसर से, तो बीजेपी क्या बोलती? यही बोलती क्या? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं ना, मतलब क्या है और उस वक्त तो। और अभी तक एक चीज है प्रदीप जी, जैसा हमारे निजाम साहब बार बार पूछते रहते हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ भाई? मतलब उस पे तो सारी दुनिया को सर पे उठा लिया था, ना जाने क्या कुछ हो गया था कि ये भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी उसका। निजाम साहब आपको कोई जानकारी है क्या हुआ उस इन्वेस्टिगेशन? कुछ नहीं करेंगे सर। आपको याद होगा बिहार के मुख्यमंत्री ने उस वक्त जो है एक सीनियर आईपीएस अफसर को मुंबई में लाके बिठा दिया जी कि उस जांच में शामिल रहिए और इस सरकार के खिलाफ जाइए। तो अब ये नैतिकता, मैंने आपको वही कहा ना कि नैतिकता शब्द इनके यहाँ नहीं है। संजीव भट्ट का हाल आपने देखा ना, वो बेगुनाह आदमी है। ऐसे दर्जनों आपको बता सकता हूं सर। तो ये तो जब ये फंस जाते हैं तो इनको कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब दूसरा कोई आता है ना तो उसके लिए नैतिकता का शब्द यूज करते हैं। और प्रदीप जी आप अभी कह रहे थे कि वो महाकुंभ का, अभी डॉक्टर सुनेत्रा जी साहब पूछ रहे थे, महाकुंभ में गुजरात के लोगों को इसलिए ऑर्डर दिया जाता है कि हिसाब किताब डायरेक्ट जहां पहुंचाना है वहां पहुंच जाता है। हमारे यहाँ प्रयाग में भी जो 40-50 हजार करोड़ मोदी जी के राज कहने पे खर्च हुआ, उसमें से उत्तर प्रदेश के किसी एक ठेकेदार को सिक्का नहीं मिला था। 10 रुपए का भी कोई काम नहीं दिया था वहां प्रयाग में। मैं खुद गया था इलाहाबाद, तो वोट सारा ठेका गुजरात को दिया गया। उसके अलावा भी उन ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया था जिनको कोई जानकारी थी। आपको याद होगा मोरबी का ब्रिज गिरा और जिसने बनाया था वो घड़ी का कारोबार करता है। जी। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बनारस के जितने ब्रिजेस गिरे वो सब गुजरात का ठेका था। तो सर ये तो एक मोनोपोली है। भले ये चिल्लाते हैं कि देश की राजनीति में जनपद अकेले चला रहा है और वो परिवार की मोनोपोली है, इन्होंने तो सारी बेईमानी की मोनोपोली गुजरात में से ले आई और गुजरात ही में लागू है। ना गुजरात में सड़कें अच्छी हैं, ना गुजरात का इकोनॉमी अच्छा है, ना गुजरात में कारोबार अच्छा है। आज देश में 4 लाख से ज्यादा इंडस्ट्री भारत छोड़ के बाहर जा चुके हैं। आप बहस करना एक अलग चीज है और बातें करना अलग चीज है, लेकिन जो सत्यता है इस देश की वो आपके सामने है। देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। और हालत तो आज मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि जो हालत अभी बांग्लादेश और श्रीलंका की हुई है और एक किसी और देश में आज उनके विधान, वहां नेपाल में आज उनके विधान लोकसभा में चढ़ गए लोग, जजेस के घरों को तोड़ा, सब चालू हो गया। वो दिन भी शायद हमको तो लगता है मोदी राज में ही देखने को मिले। ये पहले ही डर था, तो मोदी जी ने पहले ही ऐलान किया हमारे एनएसए ने कि बहुत भारी ताकत मोदी जी को डिस्टेबलाइज करने में। ये जो मोदी जी और ट्रंप का जो झगड़ा है इंडो यूएस रिलेशंस में, इसमें मोदी जी को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत फंडिंग हो रहा है पूरे देश में। तो एक चिंता का विषय है। भारत बहुत ताकतवर देश है, भारत बहुत ताकतवर देश है और ट्रंप से भी ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति को इंदिरा जी ने लात से मार दिया। तो भारत के लिए ये शब्द बेकार है कि अमेरिका हमारा कुछ टेढ़ा कर लेगा, लेकिन गलत पॉलिसी में कोई भी फंस सकता है। अगर आपको मंत्र नहीं पता है सांप के काटने का, तो जबरदस्ती बिल में उंगली क्यों डालने का? पहले उसका मंत्र सीखो। अगर आपकी पॉलिसी वो हो गया है सर, वो जहां तक ट्रम्प का सवाल है वो तो हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी निजाम साहब, आई एम रियली एंड ट्रूली हैप्पी टू सी पुतिन एंड शी जिनपिंग स्टैंडिंग बाय अस। और बॉर्डर का भी जो मामला है अब धीरे धीरे वो भी रिजॉल्व हो रहा है। उसमें अब क्या है कि द पॉइंट इज, जैसा कि आप जानते हैं कि
यू हैव टू वर्क आउट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, 1962 की लड़ाई में जब चीन ने हमारे ऊपर लड़ाई करी थी तो अयूब खान साहब प्रेसिडेंट थे, जनरल अयूब खान डिक्टेटर थे पाकिस्तान के। पंडित नेहरू ने अयूब खान को लिखा था और उनसे बात भी करी थी कि भैया तुम इसके बीच में मत पड़ना, एंड हैट्स ऑफ टू अयूब खान, ही kept his commitment. Pakistan did not attack us when China was attacking us, even though a lot of people were of the opinion in Pakistan के सबसे अच्छा मौका यही है, फटाफट कश्मीर ले लो, लेकिन अयूब खान kept his word to पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही तरीका है अभी आज की तारीख में अमेरिका से अगर कुछ आ रहा है तो we have reworked our relationship with China and with Russia। रशिया के साथ तो पहले से ही थी और चाइना के साथ भी अभी है। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, एज यू नो द यूएसए, कल ही ट्रम्प साहब ने कहा कि आई एम गोइंग टू प्लेस फर्दर सैंक्शंस अगेंस्ट एनीबडी हु बाइज रशियन ऑयल। रशिया से कोई तेल और खरीदेगा तो मैं उसके ऊपर और सैंक्शंस लगाऊंगा। तो हिंदुस्तान ने अपनी तेल की जो खरीदी है वो और बढ़ा दी है। नाउ वी आर बाइंग मोर। उन्होंने कई मिलिट्री बेस अपने जो है पाकिस्तान भेजे, कई बेड़ा उन्होंने लगा दिया। दूसरी चीज ये कि आपको याद होगा जानना चाहिए हमारी सर आपको मैं जानकारी दे देता हूं। लड़ रही थी ना तो चाइना हमारे साथ नहीं खड़ा था, इसलिए चाइना पर कर लेना सर हो जाता है। हमारे देश का कोई अहित नहीं हो, ये हम सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर, अरे निजाम साहब कभी बात तो सुन लिया करें। C-17 ग्लोब मास्टर जो है अमेरिका का, वो नूर खान बेस के ऊपर वो लैंड किया है, इसलिए लैंड किया कि उसको रिपेयर करना है। एयरफोर्स ने तोड़ दिया था उसको। वो अमेरिका की बेस है, पाकिस्तान की नहीं है। और कुछ फिर आपको बता रहा हूं मैं, अमेरिका के ऑफिसर्स भी मरे हैं इसमें। और lots of American officers have died, American planes have died, and by the way, a lot of American nuclear weapons which are stored over there, they have been rendered inoperable because of our strikes. So, वो चलता है, but all I am saying is चलते चलते, Dr. Malhotra, but don't you think in this day and age, Daruwala साहब tried to divert the subject, etc. In this day and age, मैम, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये क्या है? गाय के ऊपर आप ज्यादा पैसा खर्च रहे हैं, बच्चों के ऊपर आप नहीं कर रहे। मतलब व्हाट इज दिस डॉक्टर मल्होत्रा, यू नॉट इवन अशेम्ड। As I said कि this is a distorted priority and they are using, मतलब गाय का issue, गाय का topic they are using for the vote bank. That's a very obvious thing it is that there is. But ma'am, what I would like to know is how can you even try to defend this? This is indefensible. That's what he was getting at. He was trying to defend it and trying to put it on us that we for us guys not. We should appreciate. Absolutely, that is the always BJP people they do that. अरे 40 रुपए आप गाय पे खर्च रहे हैं, 12 रुपए आप कुपोषित बच्चों पे खर्च रहे हैं। मतलब I can't believe this. I cannot believe this. Let me tell you this very frankly. Absolutely. But I thought somebody had made this up. Very frankly, मैं आपको निजामुद्दीन रिंग साहब जरा माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आपके यहाँ भी कोई अमित मालविया आ गया है। वेरी फ्रेंकली, कांग्रेस में जिसने ये किया है, जिसने ये ट्वीट किया है, फिर उसके बाद हम वापस गए मध्य प्रदेश सरकार की हमने वेबसाइट देखी, फिर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देखा, फिर सीएजी की रिपोर्ट देखी, फिर मध्य प्रदेश की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है मिसेस भुरिया जो हैं, उनका कोट आया कि भैया मेरे को पैसे नहीं मिलते मुझको कुपोषित बच्चों के लिए। अभी क्या हम क्या कर रहे हैं हम इस देश में? It's absolutely a good point that you have taken out. I mean, I would say thank you that you have brought it in everybody's notice that such a thing is happening. It's a very, very sad thing. This is terrible. This is absolutely terrible. I mean, this cannot be accepted by anybody. I hope the Prime Minister takes notice. I hope somebody tells the Chief Minister of Madhya Pradesh, what are you doing? Please wake up. You are here to govern humans. Yes. Absolutely. अरे गाय के लिए आप अलग मिनिस्ट्री बना दीजिए ना। You look after cows. We would like you to look after human children. सीधी सादी बात है। This is not done. Anyway, thank you very much for joining us. निजाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज और आपको बता दें, राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी हर जगह बहुत बढ़ गई है। सारे सर्वेक्षण जितने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। Oh God, his popularity is really surged. I hope this. Intelligent person. I mean, we also say that. I mean, I hope this gets converted into votes. Even in, as where GST was concerned, you remember that he was the one who said that whatever the GST is, he's the one who started all that topic. Madam, he said that 16 years ago. Sorry, 12 years ago. 12 साल पहले. ये तो मेरे सामने की बात है जब बॉम्बे आए थे.
महालक्ष्मी रेस कोर्स पे आप ये पता नहीं निजाम साहब को याद है कि नहीं याद है, उन्होंने ही हेल्ड अ मीटिंग, ही हेल्ड अ प्रेस ब्रीफिंग आल्सो ओवर देयर, और आपके उस वक्त प्रेसिडेंट संजय निरुपम जी हुआ करते थे, ये भी मुझको याद है। तो उस वक्त बिफोर जीएसटी हैड कम इन, जीएसटी के आने के पहले राहुल गांधी जी ने ये कहा था, टू अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय मी, he had said that we will accept anything around 17 or 18%, which is a rational thing. अकल वाली चीज है, 17-18% आप लगा दीजिए, वो ठीक है बिल्कुल। And well, they've come to say 17 or 18% now. But I hope this thing in Madhya Pradesh gets resolved. I really and truly hope, because we are going to be carrying this. I am not going to be giving this up. ये मध्य प्रदेश का जो मैटर है, जहां पे आप गाय के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च रहे हैं, बच्चों के ऊपर कम कर रहे हैं, we are not going to give this up. Thank you very much, Nizam Saab. Thank you very much, Surendra Malhotra ji. So nice of you. Namaskar. Well, that's it as far as tonight's show is concerned. And Mr. Trump, I think really and truly will have to look at his advisors, just like Rahul Gandhi. So Trump was trying to show that, he's not predictable. You can't predict what Trump is going to do next. And that's why probably his close people say that Trump reacted to everybody in such a way that don't predict what I'm going to do. I'm unpredictable. And this is the way. You can't preempt what I'm going to do. Well, the New York Stock Exchange has really fallen. The Dow Jones is really down. And Trump is blaming the fact that, that's because we are not getting more tariffs. What he doesn't realize is that there is only one country in the world which will pay for Mr. Trump's tariffs. Mr. Trump के टैरिफ्स के लिए सिर्फ एक ही देश पैसे खर्चेगा, और उस देश का नाम है यूएसए। ट्रंप के जो टैरिफ हैं वो टैक्स है यूएस ग्राहकों पर, अमेरिकी ग्राहकों पर टैक्स है साहब, वो हमें नहीं देना है, किसी और देश को नहीं देना है, वो आपने इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है। अब ये अकल के दुश्मनों को इतना मालूम नहीं पड़ रहा, तो अब आगे चलिए साहब, God bless them all, that's all that we can say. And we wait for Mr. Trump to finish his term. मतलब 3 साल और हैं ट्रम्प साहब के, देखते हैं और क्या क्या गुण खिलाते हैं। बट वन ग्रेट थिंग इज देयर, जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, I think this is a huge opportunity for us. China has already said that whatever you were selling to the US, we will absorb 30% of it. And Russia has said 20%. And they've gone one step ahead and told Trump that what you've done with India is wrong. Your Trump tariffs on India is wrong. It can't happen like that. And you can't have unilateral decisions like this. You have to discuss with countries. You have to discuss with countries. That's most important. Or at least you have to discuss with your own people. अपने चलिए हमारे साथ बात ना करे. He should at least discuss it with the American customers. तो all those who are buying Indian goods, उनसे तो बात कर लो कि ये टैरिफ कौन देगा। आपने 50% टैरिफ लगा दिया ऑन इंडियन लेदर गुड्स, कानपुर वगैरह से चमड़े की चीजें जाती हैं वहां पे, हिंदुस्तान से जूते बन के, चप्पल बन के, बाकी सब चीजें बन के, लेदर बैग्स बन के, कोट्स बन के, बाकी लेदर की जो जितनी भी गुड्स जाती हैं, परफ्यूम से, दैट्स राइट, वो वो सब चीजें जो जाती हैं, आपने क्या जो हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हैं उनसे बात करी, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनसे बात करी, जो रिटेलर्स हैं उनसे बात करी, जो ग्राहक हैं उनसे बात करी। Why are you imposing these tariffs on the American people? You're not imposing them on us. We'll find new markets. ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी पहले, but we'll find new markets. There is no problem. पहले भी हो चुका है हमारे साथ। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त प्रदीप जी सैंक्शंस लगी थी हिंदुस्तान पे, जब हम लोगों ने पोखरान 2 किया था। We came out of that too and we came out much stronger. Here again we'll come out much stronger. एक चीज आपको बता दें, क्योंकि सैंक्शंस लगी, इसकी वजह से चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 हुआ, उसकी वजह से मंगलयान 1 मंगलयान 2 हुआ, बिकॉज वी डिसाइडेड वी डोंट नीड एनीबॉडी, वील डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स, और उसी की वजह से गगनयान होगा, ये भी याद रख लीजिए। उसी की वजह से सेमीकंडक्टर्स हुआ, we are doing this all. That's right. And various other things, engines probably, we are trying to manufacture engines too. Aviation engines, yes, aircraft engines. At the moment, of course, we are buying them from the US, from General Electric. और जनरल इलेक्ट्रिक के जो 100 इंजन आने वाले हैं, वो आई थिंक फर्स्ट विल बी डिलीवर अराउंड द 18th of September, the first 5. But point is, India has woken up to the fact that hey, listen, you can't depend on anyone, you got to do everything yourself. That's it. Well, that's just about it.
और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वो घंटी भी बज गई है प्रदीप जी। The fastest growing channel of the nation now. Fastest Nation growing now. channel. The fastest growing channel of the nation now. डू सेंड योर कमेंट्स, अपने कमेंट्स जरूर भेजें, जो आपको समझ आया, जो आपको दिखा, क्या और आप देखना चाहते हैं आप ज़रूर भेजें। हाँ, एक चलते होते एक और चीज़ बता दें, पहली बार हुआ है कि इस बार लाल बाग के राजा के विसर्जन में इतनी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी लोगों को, प्रदीप जी। बिल्कुल। और जो कोली समाज है वो बहुत नाराज़ है। अभी तक क्या था कि कोली समाज जो है वो जा करके लेके जाते थे लाल बाग के राजा को, अब क्या किया उन्होंने, एक फोकलिफ्ट बना दी, एक क्या है कि रिमोट कंट्रोल कुछ बनाया जिसकी वजह से कुछ नहीं, आखिर में कोलियों को ही लेके जाना पड़ा। और लाल बाग के राजा की जब स्थापना हुई थी प्रदीप जी लाल बाग में, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, लाल बाग जहां पर स्थापित होता है वो काला चौकी के पास, और कोली समाज जो है, इन दोनों की वजह से उसकी स्थापना हुई। और आज कोली समाज ये कहता है कि आज से 25 साल पहले तक सिर्फ कोली समाज के दर्शन के लिए 2 दिन मुकर्रर किए जाते थे लाल बाग के राजा में, आज की तारीख में सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं। और आज जिस प्रकार उनकी बेइज्जती करी जाती है, जिस प्रकार उनको इज्जत नहीं दी जाती, शायद राजा ने, लाल बागचा राजा ने एक मैसेज भेजा है, एक संदेश भेजा है जो लाल बाग के राजा की कमेटी है कि भैया जरा तनिक अहंकार कम कर लीजिए, जो आपके साथ पहले लोग थे उनको जरा इज्जत दीजिए, क्योंकि आपके साथ कुछ उद्योगपति आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लाल बाग के राजा का चरित्र यानी कैरेक्टर चेंज हो गया है, ये याद रख लीजिए। इस बार तो कोई 32 घंटे लगे हैं, अगली बार क्या होगा मालूम नहीं, तो जरा अकल से काम कीजिए। दैट्स माय ओनली एडवाइस। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू in tonight's show from both Pradeep ji and myself and from the entire Nation Now team. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।